Okay, let's start with this first one. The reaction of 4-methyl oct 1 in P compound 2.52 gram. In such type of question, as you read the question, you should be able to start with the details of the compound which is being given. So 4-methyl oct 1 in will be a 8 chain carbon, double bond here, and 4 pe methyl. Satisfy the valency will be H3, H2, 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 H, H2, H, and H2. It's a terminal alkene. Compound P है and 2.52 gram is given. It reacts with HBr in the presence of benzoyl peroxide. So this is clearly an example of SN1. अरे बाबा क्या है SN1? एंटी मार्कोनिक Sorry. Anti-Markovnikov's rule है, and it is giving you two isomeric bromides in a 9:1 ratio. So 9:1 मतलब जो मेजर प्रोडक्ट है that will be NTMR वाला, ठीक है, और NTMR का सिंपल शॉर्टकट प्लस जाएगा कम के पास, माइनस जाएगा ज्यादा के पास, प्राइमरी ब्रोमाइड्स बनता है. So the major product will be CH3, CH2, 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 CH with a CH3, CH2, 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 and a Br over here. Okay, and this will be 90%. With a combined yield of 50%. Now the yield which is obtained for this compound is just 50%. मतलब 90% का 50% हो जाएगा. ठीक है. So first of all, आगे क्या पूछा है वो देखते हैं. Of this, the entire amount of primary alkyl bromide. Primary alkyl bromide, matlab they are talking about this major product itself, was reacted with an appropriate amount of diethylamine followed by treatment with aqueous K2CO3 to give a non-ionic product S in 100% yield. The mass in milligram of S obtained is. So the primary alkyl bromide was reacted with an appropriate amount of diethylamine. Secondary amine है, and then it is followed by treatment with the aqueous Na2CO3. अब मुझे बताओ कौन सा रिएक्शन है ये? The जब H कोई will get रिएक्शन, HBr will get that Mines का. हाँ, immunolysis, the Hoffman's. यस, हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस है ये. ठीक है, मतलब इट विल बी R2NH रिएक्टिंग विद द अल्काइल हैलाइड R डैश X, HX निकल जाएगा एंड द प्राइमरी विल चेंज टू अ टर्शियरी अमाइन. Degree of mine. करेक्ट. अब एक्चुअली यहाँ Yes. पर वो बेस का रेफरेंस क्यों दिया है? बिकॉज इसके इंटरमीडिएट में व्हाट वी गेट इज एन अमोनियम सॉल्ट, मीनिंग R2N with a R dash, H with a plus and X minus. दिस इज ट्राइअल्काइल अमोनियम हैलाइड. ठीक है, जिसका बेस के साथ द एक्वियस K2CO3 which acts as a base will eliminate the acidic HX. मतलब the final product will be R2N R dash and HX will be removed. मतलब the CO3 will combine with the H and the K will take away the X. मतलब जो मेन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वो यही है, which is your compound S. Understood? अब ये S कंपाउंड में N के साथ जो तीन ग्रुप्स है उसमें से दो तो इथाइल है विच इज कमिंग फ्रॉम द सेकेंडरी अमाइन, और एक ग्रुप जो है इट इज द एंटायर अल्काइल ऑफ दिस, जिसको मैं लेट से R डैश बोल देता हूं. तो यहाँ पे R डैश. अब इसका आपको मास बताना है. ठीक है, तो उसके लिए देर इज अ स्टार्टिंग कंपाउंड का 2.52 ग्राम गिवन. तो सबसे पहले इसका मोल्स निकाल देंगे. मोल्स निकालने के लिए इसका मोलर मास लगेगा. अब इस कंपाउंड का डायरेक्ट मोलर मास विल बी व्हाट? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी 126 C9H18. करेक्ट बिकॉज इट्स एन अल्कीन विद Du इक्वल टू 1, तो C9H18. तो
108 plus 18 will be what? 26. 126. Matlab this will be 2.52 upon 126, which will be 2 into 10 raised to minus 2 moles. Yeah. या 0.02 moles. ठीक है, अब उसका 90% yield will be 0.018. 0.018 moles और उसका भी Half. 50% बोला है 0.009 moles हो जाएगा. तो now when they react together, इसका जो 100% yield आएगा that will be equal to this moles only 9 into 10 raised to minus 3. Correct. Yes, so. अब इसका जो मोलर मास है that will be नाइट्रोजन का 17 प्लस इथाइल इज So 29 और 14, no? सॉरी 14 नाइट्रोजन का, इथाइल का C2H5 is 29 29, 29. मतलब 58 एंड ये R dash is what alkyl? C9H20. H20 क्यों होगा? Oh, sorry, 19. 19. CnH2n plus 1 मतलब H2n plus 1 19 हो जाएगा. ठीक है, so this will be equal to 127. 127. 127. तो इसका जो मोलर मास होगा that will be equal to कितना आ रहा है? 199. 199 ग्राम पर मोल. अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे with the moles. The final answer will be equal to 199 times 9, 1791. 1791 into 10 raised to minus 3 ग्राम्स हो जाएगा. एंड आपको मिलीग्राम पूछा है, आंसर विल बी 1791 मिलीग्राम. दिस विल बी द आंसर. अंडरस्टूड? Yes, so. ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज ऑफ द अमोनोलाइसिस wherein your secondary is changed to the tertiary. बाकी 90% yield का मतलब समझ जाता है और उसका भी 50% लेना था और बाद में तो कैलकुलेशन है. ठीक है, नेक्स्ट. Maximum number of possible isomers including stereoisomers which may be formed on monobromination of 1-methyl cyclohexone using bromine UV. Which mechanism to be carried out? The FSR wala. Yes. And FSR will be forming the free radicals. Now, there are how many positions at which the bromine can get substituted? डबल बॉन्ड के So 3. नहीं. So 5, no? Yes. 1, 2, 3, 4, 5. One more? नहीं. Because डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन तो अलाइलिक कार्बन है. Now this is not the allylic halogenation. NVS होता तो ये 3 ही positions होती. But bromination H2 मतलब the radical reaction. मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में जो रेडिकल्स बनेगा वो इन 5 पोजीशंस पे बनेगा. अब रेडिकल जो है वो रेजोनेंस के थ्रू डिफरेंट रेजोनेंस या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे सकता है. लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स. तो पहला वाला ये CH2 रेडिकल. सेकेंड में इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेट्स मूव. तो यहाँ पर ये वाला एक रेडिकल बनेगा. नेक्स्ट विल बी द रेडिकल एट द ऑपोजिट पोजीशन. उसके बाद अगेन रेडिकल on this position. And will this be the same position or different? Different. 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 और फिर यहाँ पे वापस ये मिथाइल डबल बॉन्ड और रेडिकल यहाँ पर. Correct. Now this pi bond and radical are in Conjugation. conjugation. मतलब this will resonate and you get a double bond CH2 here and a radical at this position. ये वाला pi और radical भी conjugation में है. मतलब you'll get a double bond at this position and radical यहाँ पे.
ये वाला रेडिकल कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो इसके तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर्स बनेंगे। एंड ये वाला रेडिकल कॉन्जुगेशन में है, मतलब इसका भी रेजोनेंस होने के बाद विल गेट द डबल बॉन्ड एट दिस पोजीशन and the radical here. Is this clear? Yes. Finally, you have to just attach the Br over here at the positions जहां पर radical बने हैं. And then you have to also check the chirality because stereoisomers के साथ पूछा है आपको. ठीक है, तो first one, does it have any chirality? Yeah, I'll have Well, take the BR there. नहीं, Br वाला CH2 Oh, chiral it's नहीं a होगा. CH2. Huh, sorry, sorry. So this will be counted as one structure. One. ये वाले में the chirality Yeah. Yes, sir. is at the Br वाला carbon. So this will be counted as two structures, 2, 3. And also two. This will also be 2, 4 and 5, Also two. 6, 7, Two. 8, 9. Two. Two. ना कोई स्ट्रक्चर्स रिपीटेड है क्या, वो भी चेक करना है. So the 8, 9 and 14, 15 one, like, can they be the दिस same? Yeah. दे आर सेम ना. Yeah. ये आपको नहीं काउंट करना है बिकॉज ये आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हो गया, तो ये रूल्ड आउट है. और कोई स्ट्रक्चर जो सेम है, लुक एट द 2, 3 एंड 6, 7. नहीं, इसमें एक CH2 बीच में है, यहाँ पे डायरेक्टली Br है. डबल बॉन्ड मीथाइल एंड Br. तो और कोई यूनिक स्ट्रक्चर्स नहीं है, राइट? Yes, sir. So possible isomers including stereoisomers, monobromination, एक ही ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन था. So these are the total structures. So free radical substitution में what you are supposed to do is first form the radicals. If the radical and pi bond are in conjugation, then draw its resonating structure, and after that just attach the Br, identify the chirality, and including stereoisomers you can find the answer. समझा? Yes, sir. अब ये जो सीक्वेंस है, मतलब यहाँ पर जो सीक्वेंसेस आते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट रिएजेंट नीड्स टू बी अफेक्टिंग द फंक्शनल ग्रुप. कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिएजेंट अफेक्ट करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ऑलवेज सी द फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड. So how many functional groups does this particular compound has? 3. What are they? Like ether or triple bond and aldehyde. Correct. 3 functional groups आपको दिखने चाहिए. Now what is the first reagent? The triple bond के साथ Yes, it is the hydration of alkyne. alkyne. And where the C double bond O group will be formed? The one closer to the phenyl. Because they are in. Conjugation. So it will become C double bond O and CH2. सिंपल मैंने रूल बताया था, यहाँ पे O ऐड कर, यहाँ पे H2 ऐड कर, ये पानी का एडिशन हो गया सिंपल. What is the next reagent of AgNO3 NH4OH? Toluene. Tolens. And tolens converts the Aldehyde to acid का salt. acid. Acid. Acid directly. या CO माइनस भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर जिंक अमालगम कॉन्क HCl. Will like reduce that C double bond to.
into CH2. CH2। ठीक है, तो आपको Q रीराइट कर देना है। दिस इज अ बेंजीन विद अ मिथॉक्सी रिमेनिंग एज इट इज। दिस विल बिकम CH2 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 तीन बार एंड अ COO माइनस। ठीक है, जो HCl है मतलब इट विल ग्रैब दैट H प्लस फ्रॉम देयर टू फॉर्म द एसिड। एसिडिफिकेशन हो जाएगा तो द सॉल्ट विल चेंज टू एसिड। एसिडिफिकेशन नहीं करते तो उसको सॉल्ट फॉर्म में रहने दो। ठीक है, अब ये Q हो गया। अब Q से SOCl2 एंड पाइरिडीन, व्हाट विल दैट डू? Acyl chloride. इसको चेंज करेगा इनटू असाइल क्लोराइड। एंड व्हाट विल AlCl3 डू? So like make a Second ring. carbocation at the carbonyl one and make it form a ring. इट्स एन इंट्रामोलिकुलर रीडल क्राफ्ट Yeah. एसाइलेशन। ये असाइल क्लोराइड है, ये बेंजीन है, लेकिन सेम मॉलिक्यूल में है ना। तो AlCl3 will Yeah. grab the Cl minus to form the acylium ion, and that acylium ion will attack the benzene. Is it clear? So this is CH2 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 and the acylium का keto group will attach like this. ये हो गया आपका R and then zinc amalgam conc HCl। ये सीक्वेंस अगर आपने देखा होगा तो इट इज आस्क्ड मेनी टाइम्स, द सेम सीक्वेंस। यस और नो? ये हो गया आपका QRS। अभी क्वेश्चन खाली आपको QRS देखना था। तो Q इज ऑफ कोर्स नॉट दिस कंपाउंड, तो ये तो रूल्ड आउट हो गया। Option B will be correct. यस, बिकॉज Q इज बेसिकली योर कार्बोक्सिलिक एसिड विथ 3 CH2s। तो एक दो तीन। B and D will be correct. यस, तो ये आपका करेक्ट है। R में कोई डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। एंड S वाला जो है इट्स अ साइक्लोहेक्सेन रिंग एंड अ कीटो ग्रुप विद द R, सो दिस विल बी करेक्ट। ठीक है, तो अच्छा सिंपल क्वेश्चन था। इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, देयर इज अ कंपाउंड P given, so let me write the compound P, which is a benzene with a third butyl here, and उसके पैरा पोजीशन पे CH2 CH2 and an ester group COOET वाला है। अब QRS is formed via this sequence. So firstly, reaction of compound P with Grignard in excess in, what is C2H5 twice O? Like diethyl ether. ether, हाँ, Is मतलब this ड्राई one? ईथर है। And followed by hydrolysis give Q. Basically, they are trying to talk about ester का reaction with Grignard. Grignard। तो ester का reaction Grignard के साथ first gives First will give you a ketone here. ketone, and then ketone with Grignard will give, Then alcohol. A 3-degree alcohol. yes। तो पहले यहाँ पर CO and Grignard का methyl आ जाएगा, and then it will have the conversion into tertiary alcohol with methyl and methyl, and this is your entire R, ना? Correct. So let me rewrite the structure। ये हो गया आपका benzene, there is a Will third be butyl। Q now. R is after this now. नहीं, R मतलब this is your R, अल्काइल, अच्छा अल्काइल अच्छा का R बोल that रहा हूँ। way. ठीक है, जस्ट मतलब टर्शियरी अल्कोहल के लिए। एंड पैरा पोजीशन पे विल हैव अ CH2 ये पूरा अल्काइल हो गया एक। फिर दूसरा है मिथाइल, तीसरा है मिथाइल, और चौथा है OH। ठीक है, दिस इज योर कंपाउंड Q। नाउ द कंपाउंड Q on treatment with H2SO4 at 0 degree Celsius gives R। Dehydration. there is a catch here। Rearrangement or something. नहीं, H2SO4, अगर सिर्फ H2SO4 होता, you would have dehydrated following the even mechanism, and of course by going the U-shaped mechanism you would have formed the alkene, but elimination is favorable at Item. अच्छा here from that ether वाला. Oh, कोल्ड कंडीशन है।
तो So that डिहाइड्रेशन alkene hydrocarbons, कौन सा? था ना, that makes ethyl hydrogen sulfate. सी Cold condition. H2SO4 दिया है, OH है, OH इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। Yeah. तो OH के साथ H प्लस सबसे पहले प्रोटोनेट करके इट विल फॉर्म अ Carbocation. कार्बोकटायन। नाउ फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन, अगर हाई टेम्परेचर पे होता तो अल्कीन बनता, बट सिंस देयर इज कोल्ड कंडीशन, this carbocation will act as an electrophile and attack the benzene intramolecularly to form a ring. मतलब this is your intramolecular Friedel Crafts alkylation, जैसे असाइलेशन हुआ ना पीछे, सुनो, this OH will be broken down and will be forming a carbocation. Agreed? Yes, sir. So, so benzene when reacts with RCl in presence of anhydrous AlCl3, mechanism क्या बोलता है? This will take away the Cl minus, form a carbocation. This will act as an electrophile and attack the ring and will form an alkyl benzene. अब यही अगर कार्बोकटाइन इंट्रामोलिकुलरली बन रहा है तो दिस विल अंडरगो द इंट्रामोलिकुलर अल्काइलेशन. सो दिस विल फॉर्म CH2, ये C पे दो मिथाइल है, and that will attach to the ring like this. Have you understood? Yes, sir. So the catch was very important. Cold condition में आपको dehydration नहीं करना है. You don't have to form the double bond here. You have to, और मैंने बोला है one thing important, ring formation अगर होता है तो that is the most favorable condition. रिंग फॉर्मेशन कहीं पे भी अगर होता है तो वो मोस्ट फेवरेबल होता है, सबसे पहले उसको ही आपको फेवर करना है, ठीक है? एंड दिस कंडीशन क्लियरली फेवर्स दिस. ओके, दिस विल बी माय कंपाउंड R. अब the R is treated with acetyl chloride in presence of anhydrous AlCl3 in CH2Cl2. Now this is Friedel Craft. Friedel-Crafts acylation. अब this acetyl group will attach to which position? Top, left, bottom. तो लेफ्ट। लेफ्ट वाला नहीं, Bottom, bottom. बॉटम. सी, एक चीज मैंने बोला था कि इन दोनों में ये पोजीशन तो Yeah, it's between them. It won't happen. वर्स्ट पोजीशन है. अब यहां पर टेल मी वन थिंग, इफ आई हैव अ टोलुइन कंपाउंड एंड कंपेयर्ड विद अ थर्ड ब्यूटाइल, किसका हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर? मतलब if I want Toluene. to do the Friedel-Crafts alkylation, Toluene. why? So it has more fire. Because it has hydrogens. 3 अल्फा H और इसमें तो 0 अल्फा है, करेक्ट? Yes, sir. तो थर्ड ब्यूटाइल का अल्फा हाइपर कॉन्जुगेशन कम होने की वजह से उसका फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन इज लेस फेवर्ड. तो इसके ऑर्थो पोजीशन पे ये पोजीशन भी रूल्ड आउट है, बिकॉज इसका तो अल्फा एच है ही नहीं, बट इस पर्टिकुलर कार्बन पे दो अल्फा है कि नहीं? दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ टोलुइन, यू कैन से. मतलब this position is the best position, hence the final product S what they are talking about is benzene के ऊपर third butyl. This will be the ring chain and यहाँ पे आएगा आपका acetyl group. ये हो गया कंपाउंड S. Got it? Yes, sir. तो क्वेश्चन में था रिएक्शन Q to R and R to S are what reaction? Dehydration, dehydration ruled out. Aromatic sulfonation तो किया ही नहीं हमने. Friedel-Crafts alkylation and acylation, yes, that's of course the answer.
समझा? Yes, तो sir. अगर आपको ये समझ गया कि डिहाइड्रेशन हो ही नहीं रहा है तो ए बी तो वैसे ही रूल आउट हो गया। सल्फोनेशन वी आर नॉट डूइंग बिकॉज यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फोनेशन नहीं होता है, because you would have required conc H2SO4 in presence of Fuming SO3. yes, then only आप, और फ्यूमिंग का मतलब ही टेम्परेचर High. हाई होना चाहिए, तो इसीलिए वो सल्फोनेशन भी रूल आउट। मतलब जस्ट बाय लुकिंग एट द ऑप्शंस आल्सो यू कुड हैव आंसर्ड इट, बट इसके अगर स्ट्रक्चरल डिटेल्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आता तो वी नाउ हैव द QRS ऑल द थ्री कंपाउंड्स आल्सो अंडरस्टूड। तो ये काफी डिटेल में हमने समझ लिया। ठीक है, ओके। दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, 2018 का है। एन ऑर्गेनिक एसिड PC11H12O2, what would you start analyzing by the formula? Find DU The first. DU. And du will be equal to 22 plus 2, 22 plus 2 24 minus 12 by 2. minus 12 divide by 2, कितना आ रहा है? 6. 6। ठीक है, अब उसमें ऑर्गेनिक एसिड बोला है, मतलब वन ऑफ द DU इज ऑलरेडी कंज्यूम, Yes. Yeah. एंड 4 से ऊपर DU है मतलब द कंपाउंड विल Benzene हैव with अ benzene. बेंजीन, यानी 5 DU तो खत्म हो गया है, बराबर। Yes, sir. तो इसमें COH एंड बेंजीन है, इतना हमें पता चल गया। तो जो भी पता चले ना, you just write it over here so that this information is clear. आगे, can easily be oxidized to a dibasic acid, मतलब there is some group over here which can be oxidized into the COH giving you a dicarboxylic acid, Will have to be which terephthalic only, no? Because of dacron. हाँ, Yeah. क्योंकि आगे बोला है which reacts with ethylene glycol to produce a polymer decron। अब पॉलीमर में जो डेक्रॉन पॉलीमर है which is also called So terylene. टेरिलीन is obtained from two monomers। Ethylene glycol and terephthalic acid. हाँ, वो टेरेफ्थेलिक एसिड का एस्टर है एक्चुअली, DMT बोलते हैं, डाइमिथाइल टेरेफ्थलेट। The monomers are actually the ethylene glycol and the dimethyl terephthalate is benzene के ऊपर COOMe and COOMe, बराबर। तो जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है वो इस एस्टर ऑफ टेरेफ्थेलिक एसिड है, अंडरस्टूड। तो ये जो ऑक्सीडाइज की बात कर रहे हैं, दिस हैज टू बी अ बेंजीन के ऊपर दो COH, एंड नाउ वी आर श्योर अबाउट द पोजीशन दैट दे आर सपोज टू बी एट Para. पैरा। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मतलब आपका कंपाउंड जो है उसमें एक COH तो है ही, उसके अलावा देर इज सम अदर ग्रुप। नाउ दिस 11 कार्बन में से 6 कार्बन तो कंफर्म है रिंग पे है, एक कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड का है, और बाकी जितने भी कार्बन है वो यहाँ पर है। बचे कितने कार्बन? 4. So this will be a 4 carbon alkyne, सॉरी अल्कीन, 4 कार्बन अल्कीन, Alkene. है ना। अब ये 4 कार्बन एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, टर्ड ब्यूटाइल क्या है मुझे पता नहीं है। ठीक है, बट दिस इज समथिंग आई हैव एनालाइज्ड। अब आगे, अपॉन ओजोनोलाइसिस पी, इसका ओजोनोलाइसिस किया है। ठीक है, P gives an aliphatic ketone as one of the products, तो O3 के साथ aliphatic ketone बन रहा है which is one of the products, and P undergoes the following reaction sequences to furnish R via Q। ठीक है, तो P से R भी मिल रहा है via Q and P से S भी मिल रहा है। ठीक है, अब ये सीक्वेंस के थ्रू यू शुड अंडरस्टैंड। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कंपाउंड एस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला जो कंपाउंड है वो पूछा है। अब हाउ कैन यू रूल आउट द ऑप्शंस ओवर हियर? Can you go back to the question? यस, एस कंपाउंड पूछा है। Hmm.
and it is formed from P. Yeah. Has अच्छा, to ये be रिएजेंट्स को para. भी चेक, हाँ पैरा आइसोमर होना चाहिए। Hmm. तो वो हिसाब से अगर देखो तो ये पैरा है, ये पैरा है, ये पैरा के साथ एक और ग्रुप है, लेकिन ये दोनों तो ऑर्थो ही है। Yeah, you can eliminate. समझा? Yeah. अब लेट्स गो बैक। H2 palladium carbon, what will this do? अब अपने को इतना समझ में आ गया है कि Double Reduce. इसमें, bond will make single bond. यस मतलब अल्काइल वाला ग्रुप आ जाएगा। हीट Hmm. NH3, CONH4 and then heat so amide will become. मतलब ये जो कंपाउंड है, ठीक है, इसमें आपका ये ग्रुप जो है वो COH था, यहाँ पे मुझे पता नहीं है जो ये ग्रुप है, बट दिस इज कंफर्म कि ये CONH2 हो जाएगा। फिर And then that bromine degradation of हैप्पी बर्थडे रिएक्शन, NH2 बन जाएगा। then फिर NC and then uska reduction. एंड NC का रिडक्शन गिव्स, NaCH3. Like, मतलब सेकेंडरी मिथाइल अमाइन, yeah, मतलब ये ग्रुप तो फिक्स है। yeah. लेट्स चेक। So option B only will come. खत्म। ये वाला आपका प्राइमरी अमाइन है, नहीं हो सकता। ये भी प्राइमरी अमाइन है, नहीं हो सकता। ये तो हमने ऑलरेडी रूल आउट किया। अब इससे ये भी कंफर्म हो गया, मेरा 4 कार्बन का जो ग्रुप है दैट्स एन, कौन सा ग्रुप है? Isobutene. Isobutene. आइसोब्यूटाइल। मतलब ये 4 कार्बन का जो ग्रुप है वो अल्कीन जो है आइसोब्यूटाइलिन होना चाहिए। Isobutene. Yeah. कंफर्म हो गया, मतलब मान लो पी कंपाउंड पूछ भी लिया तो नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट You ऑल्सो। can counter know that from the aliphatic ketone thing also, no? Yes, sir. हाँ, You'll get acetone and yeah. क्या गड़बड़? Will be CH double bond C and then CH3 CH3. Yeah. ये वाला जो कि रिड्यूस होने के बाद आइसोब्यूटाइल ग्रुप देगा, सो दिस इज कंफर्म टू बी कंपाउंड पी। अब पी से क्यू और क्यू से आर भी इजी होगा। सो वंस अगेन पहला स्टेप रिडक्शन आइसोब्यूटाइल दे देगा, Yeah. सेकेंड विल गिव As that acyl, not acyl, yeah, acyl chloride, niche. असाइल क्लोराइड, फिर Then Grignard will give alcohol down. राइट एंड देन NaM. असाइल क्लोराइड एंड ग्रिग्नार्ड कैडमियम क्लोराइड वाला है, इट विल नॉट गिव द अल्कोहल ओवर Sorry. हियर। Yeah. दिस इज द रिस्ट्रिक्टेड वाला रिएक्शन ना, पहले Hmm. कीटोन बनेगा और कीटोन से रिडक्शन Huh? करके इट विल फॉर्म द CHOH Yeah. विद द मिथाइल। वन सेकंड। यस, है ना, सो दिस विल बी द कंपाउंड Q एंड Q से R। तो HCl क्या करेगा? Cl है. यहाँ पे Cl एंड Cl के बाद ग्रिग्नार्ड का MgCl, देन ड्राई आइस रिएक्शन विल चेंज टू एसिड। तो ये हो गया आपका कंपाउंड R ऑन दिस साइड। क्लियर है ये? Yes, sir. ठीक है, सो देयर आर मल्टीपल reagents, you have to just understand the sequence how it changes the functional groups. Next, the maximum number of isomers including stereoisomers possible on monochlorination. तो पहले तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बनेंगे? स्ट्रक्चरल, 4. Four. तो ये दोनों इथाइल इथाइल तो सिमेट्रिकल है, Same. 1 2 And मिथाइल the का middle एंड wala. द एच। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल से
आप स्टीरियो को फाइंड कर सकते हो। तो पहला वाला ऊपर की तरफ, आई विल जस्ट चेंज एंड दिस इज अटैच्ड टू ET ET। तो इज देयर एनी कायरलिटी? No. तो 1। नीचे वाला Cl on the left, right, ET ET and a methyl. Single structure, no stereo. Then there will be ET CH with Me, CH पे Cl and CH3. Chirality. Two centers, no? Hmm. Four Now this products. is generated 2. And is there a symmetry here? No. No. तो Four सिमेट्री products. होता तो स्टीरियो आइसोमर्स 3 कैलकुलेट करते हैं, Yeah. बट ये नो सिमेट्री वाला है, मतलब इसके 4 स्ट्रक्चर्स मानेंगे। एंड देन देयर इज ET CH Me CH2 and CH2Cl. है कायरलिटी? One. The Yes, sir. CH level. इसके 2। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, सॉरी, टोटल आइसोमर्स विल बी इक्वल टू 8, विल बी द आंसर। ठीक है, तो इसमें जस्ट ये टाइप के स्ट्रक्चर्स को आपको ध्यान रखना है, वेयर देर आर मोर देन वन कायरल सेंटर्स, एंड उसमें भी वेदर देर इज सिमेट्री और नो सिमेट्री, उसके बेसिस पे आइदर द आंसर कुड बी 3 और 4 व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट टोटल स्टीरियो आइसोमर्स। नेक्स्ट, an organic compound P having a molecular formula C6H6O3. So Du is equal to 1. No, wait. Sorry. 2. 12 plus 2. क्या अलग अलग आंसर आ रहे थे? Four. Number of carbon into 2 plus 2. 6 Four. 2s are 12 plus 2, 14. Minus 6 is 8. 8 divided by 2 is 4. Du का फॉर्मूला आता है ना सबको? Yeah. Y is the carbon plus 2 minus hydrogen minus halogen plus nitrogen divide by 2. Don't mess up in this formula. This is very very crucial. Du के बिना बहुत सारी चीजें आपकी सॉल्व ही नहीं होगी. You not understand the start. So Du equal to 4 gives a ferric chloride test. What does this confirm? Phenol. There is a phenolic OH and does not have intramolecular H bond. No intra-H bond. इसका मतलब क्या हुआ? Ortho पे don't be there, bro. Correct. Super. नो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग का इक्विवेलेंट मतलब है कि ऑर्थो आइसोमर नहीं होना चाहिए। ऑर्थो आइसोमर नहीं होना चाहिए। So whatever you understand from the statements, please write it over here so that while solving only you have many of the things cleared, because every information is crucial. गिव्स फेरिक क्लोराइड का मतलब फेनोलिक OH है, नो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग है, इसका मतलब ऑर्थो आइसोमर नहीं हो सकता। तो ये बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन समझता है। ठीक है, आगे द कंपाउंड P रिएक्ट्स विद 3 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोक्सिलामाइन। नाउ व्हाट डज दिस कंफर्म? Ketone or aldehyde, like. Yes, there will be a keto or the aldehyde group. Now it can't have an aldehyde because अगर ये 6 रिंग carbons वाला are in the कंपाउंड, ring already. Yeah. इसलिए अगर aldehyde is always outside the ring, it will require an extra carbon. Understood? और प्लस फिनोलिक OH है, मतलब बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर तो होना ही चाहिए। अब यहां पर एक ट्विस्ट है, एक तरफ फिनोलिक OH है और एक तरफ 3 इक्विवेलेंट हाइड्रोक्सिलामाइन भी दिया है, मतलब ये कीटो भी है और ये फिनोलिक भी है। कीटो फिनॉल, Tautomerism. कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म का फंडा लग रहा है। कीटो फिनॉल इज एन इनॉल, ठीक है। एंड इफ यू रिमेंबर टॉटोमेरिज्म में, इफ आई हैव अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, then this particular keto compound would be converted into phenol because of A double bond B alternate C पे H, ये H यहाँ पे tautomerize हो जाएगा and it will be converted into a phenol which is 100% enol. ये कीटो है और ये इनॉल है। समझा? तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है।
अंडरस्टूड। So तो ये कॉन्सेप्ट है। अब इससे एप्लीकेशन क्या है? थ्री कीटो ग्रुप्स विल बी अरेंज्ड एट या इन व्हाट पॉसिबल मैनर? 135. 135. हैज टू बी ऑल्टरनेट, बिकॉज तब जाके ये कीटो इनॉल बनाएगा, और जो इनॉल बनेगा ईच डबल बॉन्ड O will change to a OH. phenolic OH. So that satisfies this DU ka condition, that satisfies the three oxygen of the molecular formula. So we have found the compound P. अब P से three equivalents NH2OH will change to the oxime. So it will be double bond NOH at the 135 position. That's my compound Q. Now this P is reacted with excess methyl iodide in presence of KOH, producing compound R. कौन सा रिएक्शन है ये? Do you So it's remember binary something? like CH3 plus and Uh, it's get attached to the ring at the remaining it's a spot. nucleophilic. Yeah. हाँ, बहुत अच्छा रिएक्शन है। सबसे पहले तो बीटा डाइकीटो का क्या सिग्निफिकेंस है? The dehydration. ना ना ना, if I have CH3C double bond O, CH2C double bond O and CH3, इसको बीटा डाइकीटो बोलते हैं। एसिडिक एक हाँ, दैट्स द मेन थिंग। ये जो CH2 बीच में है, ये एसिडिक है। अब समझेगा तुमको कि एक्सेस मिथाइल आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ KOH, KOH क्या करेगा? It'll take the H plus. And in between the diketo, this will actually form the C minus, And then the which will be attacked CH3 plus by, will come. हाँ मतलब यहाँ मिथाइल आ जाएगा। समझा? इनफैक्ट ये आपका विलियमसन्स जैसा रिएक्शन हो गया ना, RX plus रोना गिविंग एन ईथर टाइप रिएक्शन। अंडरस्टूड? नाउ एक्सेस मिथाइल आयोडाइड मतलब both the H of this CH2 are acidic. So if I have excess of KOH and methyl iodide, both the acidic hydrogen can get substituted. मतलब यहाँ पे दो मिथाइल, यहाँ पे दो मिथाइल, और यहाँ पे भी दो मिथाइल. This will be R. And then R with excess isobutyl magnesium bromide, followed by treatment with H2O plus. Which reaction? Grignard. Grignard. हाँ, तो ketone Alcohol. and Grignard will give you a Alcohol. tertiary alcohol. तो इस कीटो ग्रुप के वहां पर एक OH and isobutyl group. Again OH and isobutyl group. मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसलिए आई एम जस्ट राइटिंग isoBu. So this will be my compound S. Now we have found PQRS all. अब आपसे पूछा है total number of methyl group in compound S is. So 1 2, उसके दो 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 तीन बार है, तो 6 from here, and every isobutyl would have 2. so 6 of that. So the answer will be 12. ये समझा? Yes, sir. The most important concept was connecting the keto and the enol concept. This was also a good question. Simple था. A trinitro compound 135 tris 4-nitrophenyl benzene. So first of all structure draw कर लेंगे. Benzene is a parent compound. 1 3 और 5 पे 4-nitrophenyl है, मतलब it's connected to another benzene जिसके 4 यानी पैरा पे नाइट्रो है. This is called 4-nitrophenyl.
The same will be replicated on the third and fifth. पहले तो ये स्ट्रक्चर समझ में आ जाना चाहिए. This is the compound trinitro compound. Now on complete reaction with excess SnHCl, कौन सा reaction? Reduction. And will convert. NO2 to NH2. So all the nitros will be converted into aniline, which on treatment with excess nano2HCl at 0 degrees Celsius, BDC. change this to N2 plus Cl minus, N2 plus Cl minus, N2 plus Cl minus. And this is your product P. P तक आ गए. ठीक है. Now as the product, P as the product, sorry. Now P upon treatment with excess water at room temperature gives Q. क्या होगा Q? Like all Phenol. 2 plus Cl minus will become OH. हाँ, फिनॉल बन जाएगा. मतलब your benzene will be connected to 3 benzenes, and now basically जो NO2 था start में वो अब convert हो चुका है into the phenolic group. So it is the conversion from aniline to phenol वाला reaction, है ना? This is Q. अब bromination of Q in aqueous medium furnishes the product R. So bromination किसका होगा? For the phenol wala. और तो क्या Yes. आएगा ना? पैरा ब्लॉक्ड है. अब ब्रोमिनेशन फिनॉल के दो केसेस थे. This is in polar protic, so एक्वेस मीडियम है ना, मतलब ब्रोमीन वाटर है तो इसके तीनों पोजीशन पे जाएगा, लेकिन पैरा तो 2 2 2 and all. ब्लॉक्ड है ना. तो यू विल गेट बेंजीन एंड जो OH है उसके दोनों ऑर्थो पे Br आ जाएगा. So there will be 6 bromine atoms which will be attached like this. ठीक है. बेटर है आप सारे स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लो, बिकॉज किसके ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा है पैराग्राफ में यू डोंट नो. You might be asked about the structure, you might be asked about the molar mass, you might be asked about the number of so and so atoms, you might be asked about like how many rings are there, कुछ भी पूछ सकते हैं. तो बेटर हर एक प्रोडक्ट को आप अगर बराबर से लिख दोगे ना तो अच्छा रहेगा. सो ये हो गया R. अब द कंपाउंड P अपॉन ट्रीटमेंट विद एक्सेस फिनॉल, इसकी बात कर रहे हैं. एक्सेस फिनॉल अंडर बेसिक कंडीशन गिव्स द प्रोडक्ट S. ठीक है. मतलब ये P का रिएक्शन किया है फिनॉल के साथ, यानी BDC विद फिनॉल हो गया. Yeah. एंड कौन सा रिएक्शन हो गया ये? So the para So hydrazone. replace. हाइड्राजोन. BDC विद फिनॉल. The para अजो. wala H gets replaced and gives a dye. Like that. हाँ, तो नाम बोलो उस रिएक्शन का. जो वाला अजो कपलिंग रिएक्शन रे. That. वेरी लास्ट ये रिएक्शन. ये आपका बेंजीन और इसके पैरा पे N डबल बॉन्ड N और फिनाइल लिख दो, चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं. N डबल बॉन्ड N और बेंजीन के ऊपर OH आ जाएगा, है ना. Yes. पैरा हाइड्रोक्सी अजो बेंजीन. द सेम थिंग विल बी रिपीटेड हियर एंड हियर. सेम ग्रुप है. आई एम नॉट राइटिंग अगेन. चलेगा. Yes, so ये है आपका कंपाउंड S. अब द मोलर मास डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड Q एंड R इज 474 ग्राम पर मोल. Now this, if you want to verify that you have understood the sequence properly, तो आप डिफरेंस निकाल सकते हो और देख सकते हो. ठीक है. अब ये रेलेवेंट है कि नहीं क्वेश्चन में वो बाद में पता चलेगा, बट दिस इज अ सिंपल वेरिफिकेशन कि Q एंड R जो है वो आपने बराबर फाइंड किया है, तो उसका डिफरेंस इतना आना चाहिए और P और S का डिफरेंस इतना आना चाहिए. ठीक है. अब क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड हेटेरो एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ S is.
S के अंदर कार्बन प्लस हेट्रो कितने हैं? कार्बन कितने हैं? 6 of this benzene, So 42. 6 of this benzene, 6 of this benzene. There are 7 ben. हाँ, मतलब ये 2 बेंजीन है और ऐसे और 2 बार है, तो 7 रिंग्स है, मतलब कार्बन 42 है। और हेट्रो एटम्स मतलब यहाँ पे कौन Plus कौन से 9. है? यस, NNO. NNO, और हर ग्रुप में 3 है, मतलब हेट्रो 9 है। 9. तो टोटल विल बी इक्वल टू 51 विल बी द आंसर। समझा? Yes, sir. एंड उसी में बोला था हेट्रो एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ आर। आर में हेट्रो कितने हैं? 9. BRO BR, BRO BR, BRO BR, 3 3 3, मतलब द नेक्स्ट विल बी इक्वल टू 9। इसका आंसर 9 होगा। ठीक है, तो इतना सब करने के बाद फाइनली दे हैव जस्ट आस्क्ड अबाउट द हेटेरो एटम्स। दे कुड हैव आस्क्ड मेनी अदर थिंग्स रिलेटेड विद दिस क्वेश्चन, बट इसके अंदर हेटेरो एटम्स पूछा है। ठीक है, और एक स्टेटमेंट भी दिया है, अदर atoms other than carbon hydrogen are obviously considered heteroatoms. नेक्स्ट, अगेन एक और सी, हर क्वेश्चन का पैटर्न अगर देखोगे, देयर इज सम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच इज गिवन एट द स्टार्ट, है ना? सबसे पहले उसका डीयू फाइंड कर लो। अब इसका डीयू 1. 1, इतना बड़ा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन डीयू 1। सो ऑफ कोर्स ये कोई रिंग कंपाउंड तो नहीं हो सकता, इट विल बी एन, Ester or acid only. हाँ, क्योंकि यहाँ पे O2 दिया है। Alkene O2 का है. हाँ, this is actually alkene O2, which is the molecular formula of carboxylic acid as well as ester. लेकिन उसके अलावा it can be an unsaturated Diol अल्कोहल। also. हाँ. alcohol भी हो सकता है। Yeah. ठीक है, and unsaturated diol होगा बेसिकली, Yeah. हो सकता है। ठीक है, अब क्या है, let's understand. So there is an organic compound which decolorizes bromine water, confirms। Unsaturation. Double bond. डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं हो सकता ना, बिकॉज डी यू वन ही Double है। bond only. तो वैसे जनरली डबल या ट्रिपल, लेकिन क्योंकि डी यू वन है तो हम ट्रिपल बॉन्ड नहीं बोलेंगे। बट ये कंफर्म हो चुका है कि एक डबल बॉन्ड तो है ही, मतलब ये एसिड और एस्टर भी हो सकता है, या अल्कीन, सॉरी एसिड एस्टर नहीं हो सकता A बिकॉज, diol with a double bond. हाँ, इट इज डीकलराइजिंग ब्रोमीन वाटर, मतलब इट हैज टू बी अ डबल बॉन्ड का टेस्ट, राइट? Yes, sir. एंड ऑल्सो शोज पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये क्या कंफर्म करता है? One of the OHs is on the second carbon. Like, Yes, it confirms a methyl secondary alcohol, है ना? Because haloform test is given by ethanol, ethanol, alkane 2-ol, alkane 2-on, the acetophenone, and its secondary alcohol. 6 things always to remember. ठीक है, अब आगे ऑन ओजोनोलाइसिस। अब ये भी कंफर्म कर रहा है कि डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो वाला है, एंड फॉलोड बाय H2O2, मतलब कौन सा ओजोनोलाइसिस? ऑक्सीडेटिव की रिडक्टिव? oxidative. हाँ, मतलब अल्डिहाइड अगर होगा तो एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कीटो ग्रुप आएगा तो फिर एज इट इज। सो इट्स गिविंग यू कंपाउंड क्यू एंड आर, अभी तक पता नहीं चला है क्यू एंड आर क्या है। नाउ व्हाइल कंपाउंड शोज पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखा रहा है, आर डज नॉट शो, नो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, क्यू एन आर ऑन ऑक्सीडेशन विथ पीसीसी फॉलोड बाय हीटिंग, पीसीसी और हीट gives you S, and यहाँ पर भी PCC and heat gives you T respectively. Both S and T shows positive iodoform test. अब ये दोनों iodoform test दिखा रहे हैं।
मतलब मिथाइल कीटो ग्रुप हो सकता है या मिथाइल सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप हो सकता है, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। ठीक है, अब complete copolymerization of 500 moles of Q and 500 moles of R gives 1 mole of a single acyclic polymer U. Q and R का polymerization is giving you a single acyclic copolymer U. What polymer is related with this? Have you all gone through the polymers chapter? So very briefly, like So copolymerization so में PHBV1. yes, it has to be PHBV because copolymerization में कहीं पे भी एसिड वाला ग्रुप, That Valor and the other one is formed. yes, so PHBV is actually polyhydroxy beta butyrate and beta hydroxy valerate. मतलब बेसिकली PHBV का फंडा क्या है? I'll just give you a short explanation. There are two monomers. One is a beta hydroxy valer butyric acid and another is beta hydroxy valeric acid. तो बेसिकली 4 कार्बन एंड 5 कार्बन वाला एसिड है जिसके बीटा पोजीशन पे यू हैव द OH. दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज OH. स्ट्रक्चर है CH3 CH CH2 एंड सिमिलरली यहाँ पे 5 कार्बन है एंड एसिड के बीटा पोजीशन पे OH. तो ऑन द लेफ्ट साइड देयर इज एन इथाइल ग्रुप एंड देन CHOH CH2. अब when they undergo the polymerization, इसका n moles, इसका n moles react करता है. And what functional groups do you see here? Like water will come out. Acid and alcohol. हाँ, एसिड और अल्कोहल दिख रहा है. मतलब Ester. बेसिकली एस्टरिफिकेशन हो रहा है. मतलब द एस्टर फॉर्म, द polymer formed will be called a polyester. Yeah. समझा? Polyester मतलब there will be many ester linkages which will be formed. तो एस्टरिफिकेशन का फंडा ये है OH of the acid and H of the alcohol, है ना? तो Yes. रिएक्शन सिंपल करने के लिए आई जस्ट राइट द OH ऊपर एंड इथाइल नीचे. ठीक है, मतलब यहाँ पे HO लिख देता हूँ और यहाँ पे ET लिख देता हूँ. सिमिलरली यहाँ पर भी सेम चीज, OH ऊपर ले लिया, Me नीचे ले लिया. ठीक है, अब देखो आसान लगेगा रिएक्शन. एसिड का OH और अल्कोहल का H, सेम वे में यहाँ पर अल्कोहल का H, एसिड का OH. 2NH2 एंड H2O निकला, Yeah. 2 पानी निकला ना. समझा? Yes. So सो नाउ लेफ्ट टू राइट जो एस्टर का स्ट्रक्चर है वो कैसे लिखते हैं? सो जो H निकाला उसके बाद वी आर लेफ्ट विथ O CH Me CH2. नाउ दिस लिंकेज इज द एस्टर लिंकेज विच यू ऑब्जर्व. और यहाँ पे इथाइल ग्रुप, उसके बाद CH2 C डबल बॉन्ड O एंड दिस विल रिपीट n times. That is PHB. Understood? yes. So So here now this Q is confirmed to be a beta hydroxybutyric acid and R will be yeah. beta hydroxyvaleric acid. अब कौन सा क्या है वो भी अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, So बट iodoform से you can come. हाँ करेक्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट बोला है, मतलब इसमें ये वाला ग्रुप होना चाहिए, राइट, मिथाइल सेकेंडरी अल्कोहल. तो Yeah. यही अब रिकन्फर्म कर दिया कि क्यू ब्यूटेरिक वाला है और आर वैलेरिक वाला है. अब ये ओजोनोलाइसिस से बना था, मतलब इन दोनों को इफ आई कनेक्ट बाय अ डबल बॉन्ड आई गेट माय कंपाउंड पी. Yes. So लेट्स डू दैट. लेट मी ऐड अ स्लाइड हियर.
So can you solve this question without knowing polymers, or like do you have to know it? पॉलीमर पता होना चाहिए ना। अगर पीएचबीवी का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप क्यू और आर कभी फाइंड नहीं कर पाओगे, Yeah. बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंट। बिकॉज इतने हिंट से अपने को स्ट्रक्चर क्या है वो तो पता ही नहीं चल पाएगा ना। यू विल नेवर कम टू नो व्हाट दिस कंपाउंड कुड बी विदाउट द पीएचबीवी कॉन्सेप्ट। गॉट इट? Yes, so तो अब ये पी कंपाउंड विल बी, तो इसका जो सी ओ एच का सी है और इसका सी ओ एच का सी है, आई हैव टू जस्ट कनेक्ट बाय अ डबल बॉन्ड। तो माई स्ट्रक्चर वुड बी एच ओ सी एच सी एच थ्री सी एच टू। हाँ, उसके बाद यहाँ पे सी एंड डबल बॉन्ड सी। उसके बाद ये है सी एच टू सी एच ओ एच एंड ई टी। ई टी मतलब यहाँ इथाइल, एंड सेटिस्फाई द वैलेंसी यहाँ पे एच और एच। स्ट्रक्चर समझा कैसे आया? yes, so अब डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, अल्डिहाइड बना, उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो एसिड बन जाएगा। दिस विल गिव मी क्यू एंड दिस विल गिव मी आर। ठीक है, अब उसके बाद पीसीसी और हीट दिया है। व्हाट विल पीसीसी डू? we'll make it a ketone. No, कीटोन। And if you observe, the ketone which you are getting is a beta ketone to the acid. beta keto acid. And what is important? The beta keto acid का heating immediately COH goes CH2 at C2. decarboxylation, एसीटोन दे देगा ये CO2 निकाल के। समझा? Yes, so मतलब this will be my compound S. S is acetone. Okay. S is acetone। ठीक है, और इसका भी I'll get CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH2 COH। अब ये देखो इसमें इथाइल कीटो ग्रुप आ रहा है, मतलब नो आयोडोफॉर्म टेस्ट का कंफर्मेशन हो गया। तो दिस विल नॉट गिव यू द आयोडोफॉर्म टेस्ट, बट जो कंपाउंड एस और टी है उन दोनों में मिथाइल कीटो ग्रुप है विच विल कंफर्म गिव यू द आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो दोनों आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, लिखा था ना लास्ट में, बोथ गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो ये कंफर्म हो गया। समझा? क्वेश्चन क्या था? सम ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन एस एंड टी। ऑक्सीजन एस में एक है और टी में भी एक है, तो एस एंड टी में द नंबर ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू 1+1। सी पॉलीमर्स में यू आर जस्ट सपोज टू अंडरस्टैंड मोनोमर्स एंड पॉलीमर का रिलेशन, लाइक कौन से मोनोमर के लिए क्या पॉलीमर है एंड कुछ प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो उतना कर लेना। ठीक है, अंडरस्टूड। yes, so अब इसके अंदर, हाँ, इसके अंदर एक और क्वेश्चन पूछा था कि जो फाइनल पॉलीमर है उसका मोलर away. मास कितना है। तो बेसिकली इसका मोलर मास फाइंड करके जो एन है दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच इज एन। ये बोला है ना 500 मोल्स ऑफ क्यू। 2000 नहीं 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 नहीं, इसका 500 500 of एंड this इसका 500, तो ये भी 500. बस इस पूरे पार्ट का मोलर मास ढूंढ के मल्टीप्लाई कर लो 500, यू विल गेट योर आंसर। खत्म। So in the solution they are done 500 into molecular weight of Q plus 500 into molecular weight of R minus 999 into 18. They Like have eliminated only one H2O, but that will be wrong yeah. because what we are eliminating is two H2O। I think उनका आंसर जो है वो 93018 आ रहा है, but it should be
A complete line 3000 only. Need to eliminate 18 more. Because is this clear? इसका n से इसका n रिएक्ट कर रहा है. एक पानी यहाँ से निकल रहा है, एक पानी यहाँ से निकल So रहा are है. you considering like the chain is still going on or like it closes at the end? No, there is no termination which has been given. अच्छा, okay. So you don't consider that only. ना ना ना. n जो है वो आपका 500 है. और ये मतलब if you add दोनों का molar mass and subtract 2 times water into 500, that will also be fine. You'll get the answer. उन्होंने 999 किया है. Yeah. लॉजिक बैठेगा ही नहीं बिकॉज देर इज अ क्लियर लॉस ऑफ टू वाटर मॉलिक्यूल एंड दिस इज योर एनसीईआरटी का रिएक्शन गिवन. ओके. Yes. So. ओके. नेक्स्ट. कंपाउंड मेजर प्रोडक्ट पी इज फॉर्म सीक्वेंस में. सो यू हैव अ ट्रिपल बॉन्ड कार्बन. देन ये जो 15 लिखा है इट इज CH2 रिपीटेड 15 times and then there is a ester group. So alkyne, terminal and ester functional groups है. सीक्वेंस में Hg2 plus H3O plus क्या देख करेगा पहला. Methyl ketone. This will change to CH3C double bond O. Yeah. And Then then CH2. ये बन जाएगा CH2 And then and COH on the right. plus ethanol. मेजर प्रोडक्ट बोला तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा which will be CH3 CH2. अब टोटल 16 बार हो जाएगा. Yeah. अब this particular compound is a fatty acid. इसको बोलते हैं स्टीयरिक एसिड. And fatty acids are those long chain carboxylic acid which can be used to prepare oils or fats. Okay? अब ये वाला part actually is related to the esterification reaction only. अब इससे कैसे कनेक्ट होता है वो हम डिस्कस करते हैं. ग्लिसरॉल रिएक्ट्स कंप्लीटली विथ एक्सेस पी. तो ये कंपाउंड पी तो मुझे मिल गया है. इसके साथ ग्लिसरॉल रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म क्यू. Now, what is glycerol? It's a trihydric alcohol. ग्लिसरॉल बेसिकली अल्कोहल है जो एसिड के एक्सेस से रिएक्ट कर रहा है. The esterification. यस. और कितने मोल्स एसिड के यूज होंगे एक्सेस में बोला है तो 3. 3 मोल्स. अब एसिड का OH और अल्कोहल का H. तब क्या मिलेगा CH2O CO C17H35 CHO CO C17H35 CH2O CO C17H35. ये एक्चुअली फैट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और फैट का फॉर्मूला है ऑयल्स एंड फैट्स में. अब ये आपको ना भी पता हो, सी इट डजंट मैटर बिकॉज you know that this reaction of glycerol with acid is basically an esterification reaction. और ये जो कंपाउंड है ये ट्राई असाइल ग्लिसरॉल बोलते हैं इसको बिकॉज इट्स एन असाइलेटेड फॉर्म. और इसी को TAG से रिप्रेजेंट करते हैं. ट्राई असाइल ग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं. फैट्स एंड ऑयल्स आर नथिंग बट ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ saturated and unsaturated fatty acids respectively. Now this is just an information. It was part of the syllabus long back, but वो syllabus से delete हो चुका है. Again, still अगर आपको ये part नहीं भी पता है कि ये fat है, ये triacyl glycerol है, doesn't matter because what they are doing is a simple esterification reaction. Do you agree with this? Yes, sir. ठीक है. अब next में क्या बोला है, ये जो compound Q है, it's reacted with NaOH followed by treatment with CaCl2 and yields a calcium soap R. So if you remember, soaps के लिए we had discussed that soaps are nothing but Sodium salt of fatty acid.
यस देयर वी आर मेंशन ना सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, और फैटी एसिड्स मतलब ये आर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन होना चाहिए, वही चीज यहाँ पर कनेक्ट हो गया बस। ठीक है, अब मुझे बताओ एस्टर का NaOH क्या देता है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। You'll get the COO minus and you'll get alcohol. करेक्ट, मतलब ये असाइल ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, You'll give यहाँ पे glycerol. H लगेगा, वापस ग्लिसरॉल बन गया, यहाँ पे OO Na बन जाएगा, सॉरी ONA बन जाएगा। मतलब यू विल गेट 3 moles ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टीयरेट एंड 1 mole ऑफ ग्लिसरॉल। अंडरस्टूड। अब उसको ट्रीट किया CaCl2 के साथ, मतलब C17H35COONA और कैल्शियम क्लोराइड, क्या रिएक्शन होगा? So 2 moles of that full thing with Ca. मतलब सोडियम सॉल्ट विल चेंज टू, NaCl, like NaCl and a calcium salt. और कैल्शियम सॉल्ट का फॉर्मूला ट्वाइस करके आएगा, Yeah. 2NaCl निकल जाएगा। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, स्टार्टिंग विथ 1 mole ऑफ क्यू का 1 mole लिया है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ आर प्रोड्यूस्ड इन ग्राम इज, आर मतलब ये कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो अब कनेक्ट करो 1 mole से वी हैव गॉट 3 moles, Yeah. एंड इसका 3 mole से आर कितना बना उसका हमें मास चाहिए। अब मुझे यहाँ दिख रहा है 2 moles ऑफ दिस सॉल्ट इज गिविंग मी 1 mole ऑफ दिस। 3 will give 1.5. बेसिकली जो आपका फाइनल आर है दैट इज 1.5 moles ऑफ द कैल्शियम सॉल्ट, मतलब इसका मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1.5। अरे अंडरस्टूड। Yes. कैल्शियम का मोलर मास दिया नहीं है बाय द वे, या तो मिस हो गया। 40 now you take. हाँ, यू टेक इट एज 40, जब पूरा करोगे तो 1.5 मोल गिव्स यू 909 एज द आंसर। गॉट इट? Yes, so ये भी अच्छा क्वेश्चन था अमाइन से। द फर्स्ट वन इज सल्फोनिक एसिड विथ मोल्टन NaOH हाइड्रोलिसिस, कौन सा रिएक्शन है ये? बेंजीन सल्फोनिक एसिड विथ मोल्टन NaOH, दिस इज फिनॉल का प्रिपरेशन। oh yeah, From benzene sulfonic acid, molten NaOH will form benzene sulfonic, then it will convert to phenoxide, then the acidification will convert to phenol. Yes or no? yes, so Phenol का conc HNO3 will give you the famous Picric. trinitrophenol. picric Picric acid. ये मैच करेगा P का 1 के साथ। Second one is starting with nitro So compound. P will be 3 now. Fine. Sorry, it will be 3. Picric acid. हाँ, Q. The first reagent is conc HNO3 H2SO4. So meta पे you'll get 9. Nitro. Nitration of nitrobenzene will give you meta dinitro. Yeah. Then SNHCl, Or NH2. NH2. अब कुछ नहीं दिया है मतलब एक्सेस में कंसिडर करो। Yeah. NaNO2 will convert to BDC, Then phenol. then phenol, and then phenol का nitration.
फिनॉल का नाइट्रेशन मतलब ये 3 नाइट्रो वाला ग्रुप, इसका Okay. ऑर्थो ऑर्थो पैरा और इसका ऑर्थो ऑर्थो पैरा, Okay. मतलब फिफ्थ सब वन पोजीशन हो जाएगा। कौन सा डायरेक्ट कंपाउंड बोल, यू विल मैच विथ 5 5, ठीक है। देन यू हैव अ रिसोर्सिनॉल गिवन, मेटाफिनॉल ना, या डाइफिनॉल, कॉन्क H2SO4 फर्स्ट, मतलब आप क्या करेंगे, नाउ दिस इज H2SO4 HNO3 सेपरेट, हाँ, साथ में है तो नाइट्रेशन, सेपरेट है तो पहले Sulfonation. सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन इसका यहाँ पर हो सकता है, और इसका यहाँ पर और पैरा पे हो सकता है। तो कौन सी फेवरेबल पोजीशंस है? the other two except the one in between. हम्म, अब वो कंसिडर किया है तो करना है, नहीं किया है तो नहीं करना है, ठीक है। बट अगर फेवरेबिलिटी की बात करें तो दिस इज वेयर द सल्फोनेशन शुड हैपन एट द पोजीशंस विथ रिस्पेक्ट टू OH। नाउ नाइट्रेशन किया, NO2. Replace the SO3H. पहले नाइट्रेशन विल हैपन विथ रिस्पेक्ट टू OH ग्रुप्स, तो ये पोजीशन और ये पोजीशन ही बची है, That ठीक won't है। replace the sulfonic acid wala group. दैट इज लेटर स्टेप, हाइड्रोलिसिस। Oh, हाइड्रोलिसिस क्या करता है ना, रिमेंबर दिस 2,4 डाइबेंजीन सल्फोनिक एसिड का फंडा था, एंड इफ यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस्ड दैट सल्फोनिक एसिड इज अ वेरी, good leaving group. बेसिकली क्या होता है, ये हाइड्रोलिसिस में पानी SO3H को लेकर जाता है टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड बैक, Yeah. पानी का H जो है वो रिंग के ऊपर आ जाता है, मतलब द सल्फोनिक एसिड ग्रुप विल बी कंप्लीटली लॉस्ट एंड विल बी कन्वर्टेड इनटू बेंजीन। तो क्या करना है, ये SO3H उड़ा दो, एंड द टू OH ग्रुप्स विल रिमेन एज इट इज, एंड एक नाइट्रो ग्रुप अब यहाँ पे है कि नहीं है वो आप ऑप्शन से चेक करो। तो फेवरेबल आंसर, 4. अब उन्होंने दिया है नाइट्रो इन दोनों के बीच में, जो कि अनफेवरेबल है स्टिल। अब कोई मैच नहीं, फर्स्ट भी तो मैच कर रहा है, But नहीं there aren't फर्स्ट two But दो no OHs now. नाइट्रोज है, N2 है ना. यस। हाँ मतलब वो मैच करेगा 4 के साथ ही। एंड लास्ट वन इज स्टार्टिंग विद टोलुइंग, पहला रिएक्शन Oxidation and So, aluminum oxide. एसिड हो गया, फिर so meta पे नाइट्रो आ जाएगा, Then acyl chloride, amide. COCl. Yeah. And happy birthday. Yeah. फिर BDC, And phenol. फिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल। A. हाँ अब उन्होंने 2 बार नाइट्रेशन कर दिया है, क्योंकि और कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है, तो इट हैज टू गो विद द फर्स्ट वन। 3 5 4 1 इज द आंसर, गॉट इट। इसमें सल्फोनिक एसिड का ध्यान रखना दैट वो हाइड्रोलिसिस के स्टेप में बेंजीन बन जाता है और पूरा रिप्लेस हो जाता है, गॉट इट। सो आई हैव टेकन मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट MCQs विद द कॉन्सेप्ट्स, अमाइंस तक का पार्ट। और कोई डाउट्स रहेगा तो यू कैन सेंड इट टू मी एंड विल डिस्कस देम। So, वन सेकंड।